Hello, story lovers. Today I have a new story for you from my channel Diary of Stories. So let's start listening a new story. The title of the story is Queen's Necklace and Donkey. Once upon a time, Emperor Akbar gave his queen a beautiful gold necklace. एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी रानी को एक सुंदर सोने का हार दिया. That gold necklace was very valuable. वह सोने का हार बहुत कीमती था. The queen was overjoyed to see that and thanked King Akbar happily. रानी यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने खुशी से राजा अकबर को धन्यवाद दिया. At night, the queen removed the necklace and placed it in her almirah. रात को रानी ने हार उतार कर अपनी अलमारी में रख दिया. When she woke up the next day, that necklace was not present there. अगले दिन जब वह उठी वह हार वहाँ मौजूद नहीं था. On this, the queen decided that she would now go to Emperor Akbar and tell him this. इस पर रानी ने निश्चय किया कि वह अब बादशाह अकबर के पास जाएंगी और उन्हें यह बात बताएंगी. She immediately went to Emperor Akbar and told him about this. वह तुरंत बादशाह अकबर के पास गई और उन्हें इस बारे में बताया. जहाँपना, The necklace you gave me yesterday is missing from the room. जहाँपना, आपने मुझे कल जो हार दिया था वह कमरे से गायब है. I searched for it a lot but could not find it. मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वह नहीं मिल पाया. After listening to the queen, रानी की बात सुनने के बाद Emperor Akbar wondered how it could get out of the palace. बादशाह अकबर को आश्चर्य हुआ कि यह महल से बाहर कैसे निकल सकता है. The emperor immediately ordered बीरबल to be summoned. बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया. बीरबल visited the emperor and asked, "What is the matter that you called me?" बीरबल ने बादशाह से मुलाकात की और पूछा, क्या बात है जो आपने मुझे बुलाया. Emperor Akbar told बीरबल about the theft. बादशाह अकबर ने बीरबल को चोरी के बारे में बताया. No one from outside can come here and steal. बीरबल said. बाहर से कोई यहाँ आकर चोरी नहीं कर सकता. बीरबल ने कहा. This is why I can claim that someone from inside the palace is a thief. इसलिए मैं ये दावा कर सकता हूँ कि महल के अंदर कोई चोर है. The queen's room is very safe and there are many guards. रानी का कमरा बहुत सुरक्षित है और वहाँ कई रक्षक हैं. This means that the soldiers near the queen's room and one of her maid is a thief. इसका मतलब यह है कि रानी के कमरे के पास मौजूद सैनिक और उनकी नौकरानियों में से एक चोर है. Hearing this from बीरबल, Emperor Akbar said to him. बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने उनसे कहा, If this is the case, बीरबल, I command that you go and start your action. अगर ऐसी बात है तो बीरबल मैं आदेश देता हूँ कि तुम जाओ और अपनी कार्रवाई शुरू करो. I will have to go out for a while. I will go and bring my friend. मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ेगा. मैं जाऊंगा और एक दोस्त को लाऊंगा. Emperor Akbar told बीरबल that he would send a soldier to call his friend. बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उनके दोस्त को बुलाने के लिए एक सैनिक भेजेंगे. Then बीरबल urged him, No, I have to go to bring him. तब बीरबल ने उनसे आग्रह किया, नहीं, मुझे उसे लाने जाना पड़ेगा. He will not come with anyone other than me. वह मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं आएगा. Okay then, you go and bring your friend, Emperor Akbar said. ठीक है, तुम जाओ और अपने दोस्त को ले आओ, बादशाह अकबर ने कहा. बीरबल went out of the palace and brought a donkey with him. बीरबल महल से बाहर गया और अपने साथ एक गधा ले आया. Seeing the donkey with बीरबल, Emperor Akbar was shocked and asked him. गधे को बीरबल के साथ देखकर बादशाह अकबर चौंक गए और उनसे पूछा, You told me that you are going to bring your friend. तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने दोस्त को लाने जा रहे हो. But you have brought a donkey with you. लेकिन तुम अपने साथ एक गधा लाए हो. It is a magical donkey. With the help of it, we can find out. यह एक जादुई गधा है. इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं. Who is the real thief? बीरबल told Emperor Akbar. असली चोर कौन है? बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा.
बीरबल kept the donkey away from everyone's eyes in a nearby room. बीरबल ने गधे को सबकी नजरों से बचाकर पास के एक कमरे में रख दिया। After doing so, बीरबल said, "This donkey is a magical donkey." ऐसा करने के बाद बीरबल ने कहा, यह गधा एक जादुई गधा है। Whoever goes inside, you will have to grab the donkey's tail. जो कोई भी अंदर जाएगा तुम्हें गधे की पूंछ पकड़नी होगी। You must hold the tail of the donkey and say that. तुम्हें गधे की पूंछ पकड़कर कहना होगा कि I have not stolen and I am innocent. मैंने चोरी नहीं की है और मैं निर्दोष हूँ। Everyone went inside and did what Birbal had asked them to do. सभी लोग अंदर गए और वही किया जो बीरबल ने उनसे करने को कहा था। After this happened, बीरबल sniffed everyone's hand. ऐसा होने के बाद बीरबल ने सबके हाथ सूंघा। The king, your soldier is the real thief, बीरबल said. राजा, आपका सिपाही ही असली चोर है, बीरबल ने कहा। बीरबल, how can you say that? This soldier is a thief? एम्परर अकबर आस्क्ड। बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यह सिपाही चोर है? बादशाह अकबर ने पूछा। एक्चुअली दिस डोंकी इज अ नॉर्मल डोंकी दैट आई हैव ब्रॉट फ्रॉम अ नियर बाय मर्चेंट। दरअसल यह गधा एक सामान्य गधा है जिसे मैं पास के एक व्यापारी से लाया हूँ। आई पुट अ स्पेशल परफ्यूम इन इट्स टेल। मैंने इसकी पूंछ में एक विशेष इत्र लगाया। इवन इफ समवन टचेस इट्स टेल, अगर कोई इसकी पूंछ को छू भी दे, सो द सेंट ऑफ दैट परफ्यूम कम्स टू हिज और हर हैंड्स, तो उस परफ्यूम की खुशबू उसके या उसकी हाथ से आती है। बट देयर इज नो फ्रेग्रेंस फ्रॉम हिज हैंड, लेकिन इसके हाथ से कोई खुशबू नहीं आती। दिस मीन्स दैट दिस सोल्जर डिड नॉट टच द टेल ऑफ द डोंकी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिपाही ने गधे की पूंछ को हाथ नहीं लगाया। He did so because this soldier was afraid that by doing this, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस सैनिक को डर था कि ऐसा करने से he would be caught and that's why he did not even touch the tail of the donkey. वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने गधे की पूंछ को छुआ तक नहीं। After hearing all this, he started apologizing to the Emperor Akbar. यह सब सुनने के बाद वह बादशाह अकबर से माफी मांगने लगा। So that he would leave him, ताकि वह उसे छोड़ दे। But Emperor Akbar did not forgive him and put him in prison. लेकिन बादशाह अकबर ने उसे माफ नहीं किया और जेल में डाल दिया। In this way, बीरबल used his mind to catch a thief again. इस तरह बीरबल ने फिर से एक चोर को पकड़ने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। Thanks for listening.